آج چونکہ آخری فصح کی عبادت ہے اور آئیے ہم خدا کے کلام میں سے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا باب نمبر 5 اور بورڈ پر بھی سامنے لکھا ہے اور آیت نمبر ہے جی 7. سو پہلا کرنتھیوں باب 5 اور 7 آیت کو غور سے سنیں اور پڑھیں بھی. لکھا ہوا ہے کہ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندہ ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ تمہارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. پس آؤ ہم عید کریں نہ پرانے خمیر سے نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے بلکہ صاف دلی اور سچائی کے بے خمیری روٹی سے. میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. یہ تو نہیں کہ بالکل دنیا کے حرام کاروں یا لالچیوں یا ظالموں یا بت پرستوں سے ملنا ہی نہیں، کیونکہ اس صورت میں تم کو دنیا سے نکل جانا پڑتا. لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسوں کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سبوں کو برکت بخشے. سب بولے آمین. آئیے تشریف رکھیں. ہاللیلویا. بہت سارے لوگ آج کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکے تو بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ سب یہاں پر موجود ہیں. اور آج ہم یہ شام مسیح یسوع کے اس دکھ سہنے سے پہلے جو اس نے شام اپنے شاگردوں سے منائی وہ ہم آج اپنے چرچ میں یہاں پر ہم بنا رہے ہیں. اور ان باتوں کو ہم دیکھیں گے جو یسوع مسیح نے اس رات، اور بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے پرانے عہد نامہ میں وہ فصح کا برا جو ہے، وہ فصح میں جو برا قربان ہوتا تھا اس کو خداوند نے کس طور سے کہا کہ اسے کھانا، اسے اپنی چوکھٹوں پر لگانا. اور پھر اس کو ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں گے کہ کس طرح وہ ساری باتیں مسیح یسوع میں پوری ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. سب سے پہلے آپ کے سامنے جو بورڈ لگا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، مضمون ہے جی پاس اوور، فصح. اور بڑا اچھا بیٹی بھی یہاں پر بیان کر رہی تھی کہ یہ آخری فصح کہ وہ سارے بکروں کی بیلوں کی جو قربانیاں ہوتی تھی اس کے بعد اب ہمارا ایک ایسا فصح، یہ ہمارا فصح ہے، بلکہ میں اس کو کہوں گا یہ پوری دنیا کا فصح ہے. اور یہ یسوع مسیح پوری دنیا کے لیے مصلوب ہوا ہے. اور یہ شام بڑی ہی زبردست شام ہے کہ اس شام کو یسوع کو لے گئے پکڑ کر، اس کو مارا اور کوٹا اور ساری رات اس پر تانے کستے اور اس کو ذلیل کرتے، اس کے منہ پر تھوکتے، لیکن تو بھی وہ چپ رہا تاکہ ہم بچ جائیں. سب بولے ہاللیلویا. پاس اوور اس کا میں نے لکھا ہوا ہے، عبرانی میں اسے کہتے ہیں پسا، اور اس کا معنی ہے چھوڑنا، نظر انداز کرنا. پھر موجودہ دور میں اس تہوار کو سیدر کہلاتے ہیں. یہودیوں کے اندر جو موجودہ دور میں اسے سیدر وہ کہتے ہیں. اس تہوار کو وہ اس طرح مناتے ہیں. دو حوالے، پہلا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی میں نے 7ویں آیت کو لکھا، اور ایک حوالہ ہے خروج 12 باب. توجہ کریں جی سارے، خروج 12 باب. ان دونوں کو ہم دیکھیں گے، ان میں بالکل
जिस तरह खरूज 12 बाप के अंदर वो बड़ा कुर्बान हो गया, और जब आपको याद होगा उस सारी कहानी का, वो जब मिस्री वहां से और मिस्रियों के प्लोटों को खुदा ने मारा तो इस्राएल के प्लोटों को खुदा ने बचा लिया, और खुदावंद ने उस रात उनको कहा कि बड़ा कुर्बान करो और अपने दरवाजों की चौखट पर खून लगा लो, और मौत का फरिश्ता जब गुजरेगा जो चौखट देखेगा खून से भरी है उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो चौखट खून से भरी नहीं होगी और उसको जो है उसका पलौठा बेटा मर जाएगा। तो इसलिए मेरे अजीजों ये बड़ा जरूरी है। पास ओवर इसका जो ऊपर मायने मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है छोड़ देना, नजरअंदाज करना, और इसका मतलब है कि वो काम जो खुदावंद ने किया उसकी यादगारी में ये जो है ये फसा के दौरान जो है वो कुर्बानी की जाती और बछड़ा कुर्बान किया जाता और खून बहाया जाता। हालेलुया। आज एक और चीज भी हम करने वाले हैं, वो कौन सी है? एक तो फसा कुर्बान हुआ, यीशु ने दुख सहने से पहले ये शाम मनाई, उसके अलावा एक और काम भी है, जोर से बोले। अच्छा, पाँव धोना। अच्छा, इस बात को याद रखें कि ये शायद अरमानी के साथ अटैच नहीं है, कि इसमें लाजम नहीं है कि हम इसी मतलब आखिरी फसा में ही, और यीशु मसीह ने खाने से पहले ये ना वो इशारबानी से पहले पाँव धोए और फिर इशारबानी नहीं। ये यहूदियों का कल्चर था। ये जिस तरह आज हमारे घर में मेहमान आते हैं और हम अक्सर खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, तो इस तरह यहूदियों की रिवायत कल्चर था कि वो घर में कोई बाहर से आता था तो वो पाँव धोते थे। लेकिन यीशु ने जब पाँव धोने का कहा तो वो शायरबानी के साथ नहीं जोड़ा, वो अलग है। यीशु ने जब पाँव धोए तो फिर उसने ये कहा, तुम मुझे उस्ताद कहते हो और मैं हूं, लेकिन तुम मुझ उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हारा फर्ज भी है एक दूसरे के क्या करो, पाँव धो। सब बोले हालेलुया। सो मेरे अजीजों, दो चीजें इस फसह में जरूरी थी, वो ये थी कि दो चीजें, एक था बरा और दूसरा था खून। फसह में दो चीजें अहम थी, एक बरा चाहिए होता था और फिर उसका खून चाहिए था। अगर आप मेरे साथ निकालें खरूज की किताब, उसका बाब नंबर 12 निकालें मेरे साथ, आइए मेरे साथ निकालें जरा। खरूज की किताब में हम चलते हैं और आयत नंबर हम निकालेंगे जी 12, और सॉरी बाब 12 हम देखेंगे। खरूज की किताब बाब नंबर 12, वहां पर हमें वो फसा जो उस वक्त यहूदियों ने मनाई, तो उसमें खुदा ने उनको क्या हुक्म दिया। खुदा के कलाम में लिखा है 12वां बाब, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना, बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इस महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने भाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बरा ले। अगर किसी के घराने में बरे को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के माफिक एक बरा ले ले। यहाँ पर वो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो आप घर में 3-4 लोग हैं तो बरा ले ले, खाया ना जाए तो वो जाया हो जाए, ऐसा नहीं। वो कहता अपने हमसाये को ले ले और तुम मिलकर एक बरा लो, उसे कुर्बान करो और फिर उसे खा लो। तुम हर एक आदमी के खाने के मिकदार के मुताबिक बरे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बरा बेऐब यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना। और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को इसे ज़बह करे। थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाजे के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा देना, और वो उस गोश्त को उस रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज न खाएं, बल्कि उसको उसके सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना।
उस में से कुछ भी सुबह तक बाकी न छोड़ना। अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधना, अपनी जूतियां पाँव में पहनना और अपनी लाठियां हाथ में लिए हुए तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसह खुदावंद की है। इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र से होकर गुजरूंगा, इंसान और हैवान के सब प्लेटों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटने की भी नहीं, क्योंकि तुमको हलाक करे। और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझ कर माना। तुम उसे हमेशा की रस्म के उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। यह है जी 12वां बाब खरूज का, जिसके बारे में आज हम जो है वो इन दोनों के बारे में हम देख रहे हैं। पहला ग्रंथियों और खरूज का जो ये बात हमने पढ़ा है, इसमें हमने देखा। सबसे पहले खुदावन ने वहां पर ये फरमाया कि तुमने क्या करना है कि बड़ा कुर्बान कर देना, और खून की वजह से तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और आज भी हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं रोजे रियासत से, अगर कोई कहे कि मैं हदिये से, अगर कोई कहे कि मैं नेक कामों से, अगर कोई कहे कि मेरे अच्छे कामों की वजह से, अगर कोई कहे मेरी ज्यादा दुआ करने की वजह से मुझे रिहाई छुटकारा मिल जाएगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। छुटकारा और रिहाई सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से है। सब बोले हालेलुया। खुदावन ने इस्राएलियों को कहा, एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुम्हारे ऊपर, खून को लगाना अपनी चौखटों पर। और जब मैं गुजरूंगा तो जिन दरवाजों पर खून लगा होगा उनको छोड़ दूंगा, और जिन पर खून नहीं होगा उनके पहले बच्चे पिलौठे सब मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और आप देखें कि मैंने ये सामने भी लिखा है कि वो दरवाजे की चौखट पर खून लगाया गया ताकि ये घराना सेफ हो जाए, ताकि ये घराना बच जाए, ताकि इस घराने में मातम ना हो, ताकि इस घराने में कोई ऐसी मसला या ऐसी वबा या ऐसी बीमारी या मौत इस घराने में दंदनाकर नाच ना करे, बल्कि खून उस घराने को सेफ कर लेता है। और ये चौखट पर खून लगाना सीधा यीशु की तरफ इशारा करता है। यीशु ने नए अहदनामा में कहा, दरवाजा मैं हूं, जो मुझ में से गुजरेगा वो मर भी जाए तो भी जिंदा है, जो मुझे कबूल करता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। तो चौखट पर खून लगाना ये यीशु की तरफ इशारा करता है। आज भी जो यीशु का लहू अपने ऊपर लगा लेता है वो बच जाता है, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। सब बोले हालेलुया। उसके ऊपर यीशु का लहू होना जरूर है। खरूज की किताब में हमें यीशु मसीह की वो फसा, वो कुर्बानी हमें नजर आती है कि किस तरह। आप देखेंगे बाइबल ये बयान करती है, तवज्जो करें जरा, बाइबल ये बताती है कि शर्त ये है कि वो बेऐब हो। बनी इस्राएल जो बड़ा कुर्बान करे वो बेऐब हो, ना लंगड़ा, ना लूला, ना काना, ना किसी और तरह का उसमें ऐब हो। ये भी इशारा यीशु की तरफ जाता है। दुनिया में कोई पाक नहीं सिवाय यीशु के, लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। यीशु पाक है, उसकी जात पाक है, वो बेऐब है। दुनिया उसको गुनाहगार साबित करने में लगी है। बड़े बड़े लोग आए, वो मरकर खत्म हो गए, लेकिन यीशु को कोई भी गुनाहगार साबित ना कर सका। यीशु बेऐब बरा है, और ऐसा बरा है जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये इशारा भी यीशु की तरफ पूरा होता है। सब बोले हालेलुया। कि चौखट पर खून लगाना और यीशु का लहू अपने ऊपर लेना, इससे मौत टल जाती है और जिंदगी मिल जाती है। इसी तरह फिर बेऐब को देखा जाए, तवज्जो करो जरा,
बेऐब को देखा जाए तो यीशु के अलावा हमें कोई दुनिया में ऐसी हस्ती नजर नहीं आती। यीशु बेऐब है, यीशु की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं है, यीशु ज़ाते खुदा है और वो ऐसा हमारा निजात देंदा है जिसने ललकार कर कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। सब बोले हालेलुया। इसलिए निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है, निजात यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से है। जब हम यीशु को कबूल करते हैं हमें निजात मिल जाती है। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, आप इस बात पर अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को लेकर जाएं और इस बात को देखें, दरवाजा यीशु है। आपकी कोई ऐसी अदा, आपकी कोई ऐसा काम आपको निजात नहीं दे सकता जब तक आप यीशु के लहू का इकरार नहीं करते। जो जान इकरार करेगी वो जिंदगी पाएगी और कसरत की जिंदगी पाएगी। सब बोले हालेलुया। दूसरी तरफ जो हमें इशारा मिलता है वो खरूज की किताब और उसकी आयत नंबर 8 है। लिखा है और वो उसके गोश्त को उसी रात आग में भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। अब आइए इसको हम उस हवाले की तरफ जाते हैं जो हमने मरकजी आयत रखी, ग्रंथियों का खत उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत। लिखा है कि इसको गोश्त को भूनकर खाना, और ये इशारा भी हमें बोर्ड पर लिखा है, यीशु मसीह की तरफ इशारा हमें मिलता है। खुदा ने कहा कि वो गोश्त आग पर भूनकर खाना, यीशु भी रूहुल कुश की आग से भुना हुआ वो गोश्त है जो हमें खाने के लिए दिया गया। आज जिसमें हम उसके बदन को खाएंगे, जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। पाक मेज में जब हम शामिल होते हैं ये इशारा भी उस तरफ मिलता है। यीशु खुदा का कलाम कहता है उसे बेखमीरी रोटी के साथ खाना। बाइबल में लिखा है पुराना खमीर अपने आप में से निकाल दो। ये जो खमीर है ये बैक्टीरिया है। आप देखें आटा की रोटी सही हो, अगर आटा आप उसकी रोटी बनाए खमीर ना हो तो रोटी पतली होती है, लेकिन अगर खमीर लग जाए आटे को तो वो फूल कर एकदम बड़ी हो जाती है। और आप देखें कि ये जो बेकरी में हम ब्रेड लेते हैं इसको खमीर लगा होता है। आज तो हम खमीर वाली रोटी नहीं खाते, लेकिन आज बहुत सारे लोग ऐसे खाते भी हैं। आप देखें, आप बाजार में जाएं तो आप कहेंगे, और बाहर से आप ले सकते हैं, आप कहेंगे मेरे लिए 2 खमीरी रोटियां लेकर आना। तो खमीर जो है ये बैक्टीरिया जरासीम है। बाइबल कहती है अपने आप में से खमीर को निकालो। और बाइबल में ये हमें बताया गया है कि जब फसा का भरा, तवज्जो करें, जब भरे को खाना है उसके साथ बेखमीरी रोटी हो। इतनी पाकीज़गी खुदावंद ने फरमाई है। वो कहता है खमीर वाली रोटी नहीं खानी है, बगैर खमीर के रोटी खानी है। ये जो खमीर है ये जरासीम है और ये हमारे बदन में अगर है तो इसके लिए हमें चाहिए कि इस खमीर को निकाल कर और ताजा गुंदा हुआ आटा हम बन जाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें नापाक रहने के लिए नहीं बल्कि पाक कर दिया है और वो चाहता है कि हम पाकीज़गी की जिंदगी गुजारें। सब बोले हालेलुया। खमीर जो है लिखा हुआ है ताजा गुंदा हुआ आटा बन जाओ, तुम बेखमीर हो क्योंकि तुम्हारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आप इस बात पर गौर करें, तवज्जो करें। हमारी जिंदगियों में तरह तरह से खमीर नजर आता है और हमारी जिंदगियों में था भी, लेकिन यीशु कुर्बान इसलिए हुआ ताकि हमें ताजा गुंदा हुआ आटा बना दे और हमारी जिंदगियों से खमीर जो है वो खत्म कर दे। अब मुझे ये बताएं ये खमीर कैसा है हमारी जिंदगियों में? क्या कभी हमने गौर किया कि हमारी जिंदगियों में खमीर है कि नहीं है? गौर करें जरा। बाइबल कहती है पुराना खमीर निकाल कर फेंक दो
تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ آج بھی ہم اس شائع ربانی میں شریک ہونے والے ہیں، کل ہم گڈ فرائیڈے میں شریک ہوں گے، پرسوں ہم ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا نعرے بھی لگائیں گے، سارے کام کریں گے، عبادتیں کریں گے، لیکن آج تک ہم نے اپنے اندر سے خمیر کو نہیں نکالا۔ بائبل کہتی ہے اپنے اندر سے خمیر کو نکالو۔ جتنے آدمی جھوٹ بولتا ہے، جتنے آدمی برے کام کرتا ہے، جتنی آدمی نفرت رکھتا ہے، جتنے آدمی کے اندر بغض ہے، جتنے برے کام ہے، جتنے دوسروں کے لیے برے منصوبے ہیں، جتنی دوسروں کے لیے شرارت کے کام ہیں، یہ سارے خمیر کے زمرہ میں آتے ہیں۔ یہ خمیر ہی ہے جو ہمارے جسم کو، ہماری جان کو، ہماری روح کو جو ہے وہ موت کے قبضے میں لے آتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم مرے، بلکہ یسوع آیا ہی اس لیے تھا ہم زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ زندگی پائیں۔ اس لیے پولس کہتا ہے ہمارا بھی فسح قربان ہوا تاکہ ہم بچ جائیں۔ انہوں نے برات قربان کیا، اس کا خون اس نے ذبح کیا، کس لیے؟ تاکہ وہ گھرانے اسرائیلیوں کے بچ جائیں۔ اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے اپنی چوکھٹوں پر خون لگایا تو ان کے اوپر ایک کتا بھی نہیں بھونکا، کیونکہ خداوند کہتا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس لیے یہاں پر پولس رسول نے کہا آؤ ہم عید کریں۔ اب ہماری عید، پرسوں ہم نے ایک دوسرے کو عید قیامت المسیح، چوتھ ہم نے ایک دوسرے کو یہ کہنا ہے، لیکن اگر ابھی بھی اندر خمیر ہے تو پھر عید منانے کا مزہ نہیں ہے۔ خمیر ہمارے بدن کو کیڑے کی طرح، دیمک کی طرح کھاتا رہتا ہے اور ہمیں موت کی طرف لے کر جاتا رہا ہے۔ اس لیے یہ اشارہ کہ یسوع آگ پر بھونا ہوا، روح القدس کی آگ پر بھونا ہوا گوشت ہے۔ یسوع کو لو اور اپنے اندر سے خمیر کو نکال دو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ۔ اس لیے کیونکہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں خمیر نہیں ہونا چاہیے۔ خمیر جو ہے جراثیم ہے اور یہ دوسری زندگی کو پیش کرتا ہے، دوسرا عناصر ہے۔ اس لیے آگے دیکھیں ایک اور پوائنٹ لکھا ہے، اس کو پانی میں ہرگز نہ ابالنا۔ جب خروج کی کتاب میں ان کو کہا کہ ذبح کر کے کھانا، تو پھر ان کو کہا پانی میں نہیں ابالنا۔ آپ اپنے گھروں میں گوشت ابالتے ہیں تو بائبل میں خدا نے کہا جو گوشت بڑا ذبح کر کے کھانا ہے اسے ابالنا نہیں ہے۔ یہ اشارہ کس طرف کرتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پانی میں جب گوشت کو ابالا جاتا ہے تو گوشت کے اندر ملاوٹ آ جاتی ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پانی اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ اشارہ بھی یسوع کی طرف ہے کہ یسوع بغیر ملاوٹ کے ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں۔ اس لیے یسوع فسح کے بارے میں پورا اترتا ہے، کیونکہ خدا کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ برا وہ قربان ہو جو بے عیب ہے۔ ہمارا بھی فسح بے عیب ہے۔ سارے بولے ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا نے اپنے کلام میں یہ فرمایا تھا کہ بے عیب ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہ ہو، ایسا برا میرے لیے قربان کرو۔ تو یسوع بغیر ملاوٹ کے ہے، یسوع زندگی کی روٹی ہے۔ کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں۔ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں دی، تمہارے باپ دادا نے کھائے اور وہ مر گئے، لیکن میں وہ روٹی ہوں، جو مجھے کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یسوع میں زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے اور بغیر گناہ کے ہے۔ اس وجہ سے وہ زندگی کا مالک ہے، وہ ازلی ہے اور ذات خدا ہے۔ سو میرے عزیزو، وہ بغیر ملاوٹ کے یسوع میں خمیر نہیں آ جائے گی۔ یسوع کی زندگی میں خمیر نہیں تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں آج بہت زیادہ خمیر نظر آتا ہے، اور یہ طرح سے ہماری زندگی کے اندر ہمارے لیے پھندے کا باعث بن رہا ہے۔ لکھا ہے اگر کوئی گندی بات بھی تیرے منہ سے نکلے گی تو تجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ تو جتنے بھی کام ہے پھر ان کا حساب ہی دینا پڑے گا۔ پاویں اسی اپنے ذہن چ گئی ہے میں سچا، لیکن حساب تو دینا پڑے گا۔